Yes, a very good morning to all of you. Yes, beta, yesterday we have started chapter number 2. What is the name of the chapter? Food, health and hygiene. And all these three words are related to one another. Food, health and hygiene. I asked you to frame any 4 questions from the pages 16 and 17 yesterday. Hope you have done that. Yes. Seerat beta. Which question is framed by you from the chapter, from the pages we have read yesterday? See? Cheese. Very good question. Okay. You will get these type of questions in the exam. This time we are getting MCQs only. And answer, who will tell? Aditya. 3 pictures or we can give 3 names of the food items. Which is the main source of vitamin A? Yes, it is carrot, it is cheese and it is banana. Main source of vitamin A, Pushpinder? Banana? Yes, carrot. Carrot is the main source of vitamin A. Vitamin A carrot में होता है. आपने best option choose करनी है. अगर बाकी 2 में भी है but वो कम quantity में है तो जिसमें ज़्यादा quantity में है you will choose that. So you have to read all the options first before giving your answer. Now next question by Hargun. A option 5 to 7, B 9 to 10, C. This question is not very much correct because water की quantity में ज़्यादा difference नहीं रखा गया तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. It's not there कि जो book में 6 and 8 लिखा है तो 7 and 9 नहीं हो सकता. Okay, sometimes it may vary on the weather also. बहुत गर्मी है, बहुत ठंड है. It depends on that. Sometimes we take some other fruits or some other drinks also. So it's a good try. Very good. Sit down. आपने at least try किया होना चाहिए. Yes. Who is healthy person? Options. No, आपको options भी तो देनी पड़ेंगी. Yes. A person who takes the balanced diet. A person who takes the balanced diet. So yes. A person who is mentally or physically fit. Very good. इसका options में आप दे सकती हो. Who is healthy? Number 1, who is mentally fit. B option, who is taking balanced diet. Third, it takes healthy food. Okay. No, वो तो वही हो गया balanced diet वाला. Yes, then third maybe both of these. Clear? So when you are getting options, so you have to read all the options. A very good try by all of you. Now next we are going to do food, health and hygiene. All these are related to one another. We cannot remain healthy if we do not take good food, healthy food. If we are not living in hygienic conditions, even then we will fall sick. We cannot remain healthy. And other than these two, we should take proper rest also. हमें rest भी करनी है and we should do exercise also. Exercise हमें करनी है and we should follow all these.
socially we should fit, mentally we should fit, हमें stress नहीं होना चाहिए, and we should take healthy diet, and we should live in the clean environment. We have to take baths daily, we have to wear clean clothes, we have to trim our nails, we have to drink clean water. Okay, only then we can remain healthy. So first of all, we will talk about the food. What type of food should be taken? Okay, what are the main nutrients of the food? You have to name that. Yes, beta. Name the 5 main components of the food. Ramjot. Fat, carbohydrates, minerals, vitamins. And रफेज को मेन में इंक्लूड नहीं करोगे. ओके, सबसे पहले कौन से आते हैं बोलो? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल. रफेज को आप मेन में नहीं लोगे बिकॉज उसमें से हमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, but it is very essential because it makes our digestive system healthy, it checks constipation, and clear? So we should intake all these nutrients in right amount. Why do we take food? In order to get all these nutrients. What do you mean by nutrients? Nutrients are the substances present in the food which are required for proper functioning of the body. हमारी बॉडी को ठीक ठाक काम करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए ओनली प्रोटीन्स नहीं चाहिए. We need all these. Particular, सभी important. All these 5 are important along with water and roughage also. But these are the 5 main nutrients. Okay. We take food in order to get this. If we are taking food जिनमें इनमें से कोई भी एक कम है, तो we cannot remain healthy. हम healthy नहीं रह सकते. Healthy का मतलब ये नहीं है बहुत मोटे हो तो healthy हो. No, you should be fit. You should be free from the deficiency diseases. Clear? So that's why if we are taking the diet which is rich in all these nutrients in right amount, that diet is called balanced diet. That is called Balanced diet. Is balanced diet same for all? No. It will be different for a child than old person. ओल्ड पर्सन की डाइट जो बैलेंस डाइट होगी वो बच्चे से अलग होगी. इफ समवन सिट्स इन द ऑफिस एंड डज द सिट्स ऑन द चेयर टू वर्क, उसकी बैलेंस डाइट किससे डिफरेंट होगी? वन हु इज डूइंग फिजिकल लेबर कर रहा है, कोई रिक्शा पुलर है, उसकी डाइट डिफरेंट होगी किससे? जो सीडेंटरी वर्क करता है, जो ऑफिस में बैठ के काम करता है, फिजिकल लेबर करता है, उससे डिफरेंट होगी. जो बैठ के काम करता है उसकी बैलेंस डाइट. ग्रोइंग चाइल्ड की डाइट डिफरेंट होगी अदर देन द एडल्ट. एडल्ट की डाइट जो है, उसकी डाइट जो है बैलेंस डाइट किससे डिफरेंट होगी? ग्रोइंग चाइल्ड के लिए से डिफरेंट होगी. और व्हाट इज रिक्वायर्ड in more quantities for the growing children? Proteins because they help us to grow. And Bhubi, stand up. Yes beta, which nutrient is required in more quantities for a person who pulls rickshaw or doing hard labor like construction work?
carbon dioxide. Carbohydrates. You always get confused with carbohydrates and carbon dioxide. Carbon dioxide is a gas. It is required by plants to prepare the food. जो हम निकालते हैं ज़्यादा quantity में after aspiration. Clear? So this is carbohydrates and fats. These two, they are called energy giving foods. They are called Energy giving food. no, these are nutrients. No, proteins energy नहीं देते. ये वो बॉडी बिल्ड करते हैं, वो हमें मटेरियल देते हैं और टू बिल्ड द न्यू सेल्स एंड टिश्यूज. जब ग्रोथ होती, न्यू सेल्स बनेंगे, न्यू टिश्यूज बनेंगे, तो उनको बनाने के लिए जो मटेरियल है वो प्रोटीन्स देंगी. तो प्रोटीन्स क्या है? दे आर बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन्स और बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स, नॉट फूड. फूड हम तब कहेंगे जब हम इनके सोर्सेस लिख रहे हैं. बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. दे आर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स. ये सभी हम न्यूट्रिएंट्स लिख रहे हैं. ओके. एंड these are called फूड नहीं लिखा मैंने, न्यूट्रिएंट्स के नेम लिखे हैं. तो these are protective nutrients. These are protective nutrients. अब जब हम sources की बात करेंगे, from where do we get these, तो हम करेंगे कि they are body building foods, they are protective foods, they are energy giving foods. Clear? अब मुझे आप बताओगे कि if you are getting a healthy diet, आप खाना खाने लगे हो, तो आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए कि आपको ये सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाए. Anhad will tell. You can think in your mind by the time. Yes, rice. Wait, राइस को मैं कहाँ लिखूंगी? फैट्स में. राइस में कहाँ फैट होती है? राइस आएंगे. चलो मैं एक छोटा सा यहाँ पे एडिशन कर देती हूँ. चलो मैं इधर लिखूँ. I'm going to write here rice. फैट में आएंगे ऑयल. तो हम नहीं खाते, उसको हम फ्राई करने में यूज करते हैं. Yes, we can take butter. Annie, we can take butter. Curd. चलो क्यों हो गया? Now, stand up. त्रिपत जोत. कैरेट को हम कहाँ लिखेंगे? What do we get? Which nutrient we get from this? Proteins कैरेट में होती हैं. Yes, Ash. Vitamins. यहाँ पे आएगी कैरेट बेटा. अभी तो हमने किया कि विटामिन ए वी विल गेट. अगर आप कैरेट को सैलेड में ले रहे हो या वेजिटेबल की फॉर्म में ले रहे हो, तो इट विल गिव अस विटामिन्स. ओके. नाउ कैरेट होगी हमारे प्लेट में, राइस आ गया, बटर आ गया, और क्या होना चाहिए? मिल्क को हम कहाँ लिखेंगे राजवीर? इनमें से मिल्क कहाँ पे आएगा? प्रोटीन्स. गुड. वन सेकेंड. मिल्क में लिखो. लिसन, मिल्क में हमें विटामिन बी मिल जाती हैं और मिल्क में मिनरल्स भी होती हैं, उसमें फैट्स भी होती है, उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं. दैट्स व्हाई नो डी लिखा है. ए कहाँ लिखा? ए बोल रहे हैं. ए बोल रहे हैं. डी होता है. डी विटामिन बटर में बी होता है. ओके. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स. देन milk is called nearly complete food.
इसमें विटामिन सी नहीं होगा, थोड़े से न्यूट्रिएंट्स है जो नहीं होंगे और बहुत सारे होंगे। दैट्स व्हाई छोटा बच्चा जब होता है तो उसको ज्यादा मिल्क देते हैं, बिकॉज उसको ज्यादा प्रोटीन्स चाहिए, तो उसको काफी कुछ वहां से मिल जाता है। सो मिल्क में प्रोटीन्स, ओके, देन दिस एंड fats also. Milk and milk products. Then after that हमारी प्लेट में राइस हो गए, तो राइस के साथ वेजिटेबल आ गई, और क्या होना चाहिए? कर्ड। कर्ड को भी हम यहाँ रख सकते हैं। मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम दोनों यहाँ रख सकते हैं। एग लिखेंगे तो वो भी प्रोटीन्स में आ जाएंगे, क्लियर, और उसमें थोड़े मिनरल्स भी होते हैं। हाँ हाँ, एक चीज में एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओके, बट जो हम उनको वहां रखेंगे जहाँ पे वो ज्यादा चीज दे रहा है। देन हमें पल्सेस नहीं लेनी चाहिए। आप डेली दालें खाते नहीं हो? Yes. Pulses भी कहाँ पे आएगी? Pulses। और आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए? जसप्रीत, सभी नहीं बोलोगे, जसप्रीत, आपकी प्लेट में क्या होना चाहिए कि वी कॉल इट अ हेल्दी डाइट? जो मिसिंग है, हमने कैरेट रख लिया, ये वाटर नहीं, मैं न्यूट्रिएंट्स की बात कर रही हूँ। कृष्ण, चपाती, गुड, चपाती भी कहाँ पे आएगी? चपाती की को हम रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम डेली बोर हो रहे हैं चपाती से, तो वी कैन गो फॉर होल ग्रेन ब्रेड। वाइट नहीं, जो होल ग्रेन ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड है, समटाइम्स वी कैन रिप्लेस इट विद द राइस एंड चपाती, बिकॉज वो भी किससे बनी हुई है? व्हीट से। चपाती भी किससे बनती है? व्हीट से, क्लियर। तो समटाइम्स हम कॉर्न भी ले सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, बिकॉज उसमें से भी हमें क्या मिलेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। यस शिवांश। बेटा वो फैट का होता है, कुछ ऐसा होता है कि वो मीन्स दे गिव अस। अभी हमने मिल्क की बात की है, तो लाइक के कुछ जो मिल्क आती हैं हमारे पास, उनमें से क्रीम निकाली होती है, उनमें फैट कम होती है, और अगर हम सीधा जो यूज कर रहे हैं उसमें कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं निकाली, तो वो थिक होता है, उसमें फैट ज्यादा होती है, क्लियर। तो ये मिल्क प्रोडक्ट्स, कैरेट ऑब्लिक हम सभी वेजिटेबल्स कर देंगे, आप सीजनल फ्रूट्स खाओगे तो आपको कभी भी विटामिन्स और मिनरल्स कम नहीं होंगे। You will not suffer from deficiency of vitamins and minerals. जिस फ्रूट का सीजन है, you should go for that. पुष्पिंदर, ड्राई फ्रूट्स they are rich source of proteins, minerals भी होते हैं उनमें, ओके। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी आ जाएंगे। यस, ओके। तो मेनली जो हमारे पास है, these are the main source. To get the fats, we can go for butter, we can go for dry fruits में भी fats होते हैं, low, yes. Then carbohydrates सभी grains में, wheat से बनी कोई भी चीज, बिस्किट, bread, चपाती, rice, they are the rich source of carbohydrates. So if we are taking all these, तो we are taking a balanced diet. थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि अगर बच्चा ग्रोइंग है तो उसको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, तो वो मिल्क ज्यादा लेगा, मिल्क प्रोडक्ट्स ज्यादा लेगा, ओके। और
अगर वो खा लेता है एग वगैरह, फिश खा लेता है, तो वो भी ले सकता है। देन अगर कोई हार्ड लेबर कर रहा है तो उसको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स ज्यादा चाहिए, तो अपनी चपाती की क्वांटिटी बढ़ा सकता है, मिल्क प्रोडक्ट्स की क्वांटिटी बढ़ा सकता है। क्लियर? एंड ये तो सबके लिए एसेंशियल है, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ओके, कोई भी एज है तो दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस नहीं होंगी। अब आपको क्लियर हो गया? Yes, then next, now we will take one by one all these. Yes, you want to read this balanced diet? Chalo, Abhineet, come and read this. All of you will. Different foods provide us different nutrients. At the growing stage of our body needs all nutrients present in different food items. So, a meal containing small quantities of different vegetables is healthier than a meal with a large quantities of a food with a single vegetable. The food with Now, page 18, we are going to do all these nutrients one by one. तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर called energy giving nutrients, and main sources of carbohydrates are rice, they give us carbohydrates are the main source of energy, and sources में at least 2-3 main sources आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब भी कार्बोहाइड्रेट्स की बात आती है तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए राइस एंड चपाती। हम इंडियंस क्या खाते हैं? राइस और चपाती खाते हैं मेन, और जो इंग्लिश पीपल हैं दे टेक द ब्रेड। तो ब्रेड भी व्हीट से बनती है, चपाती भी व्हीट से बनती है। तो मेन पर्पस क्या होता है? टू गेट द carbohydrates. Carbohydrates are essential for getting energy. अब जब भी हम प्रोटीन्स की बात करते हैं तो आप में से बहुत से बच्चे लिख देते हैं they give us energy. No, proteins are essential for body building, for growth. Okay. So carbohydrates we should should be taken in required amounts. What will happen if we take the carbohydrates more than the requirement? Yes, who will tell recent? Yes, वंशिका। मोटे हो जाएंगे, ओबीस हो जाएंगे। ओके, मोटापा जिसको कहते हैं वो भी एक तरह की डिजीज ही होती है, वो एक कंडीशन होती है, और जिसमें क्या होता है कि व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग मोर कार्बोहाइड्रेट्स देन द रिक्वायरमेंट, तो our body will store carbohydrates. First they will convert carbohydrates into fats. कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा लिए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फैट्स में। तो फैट विल बी स्टोर्ड अंडर द स्किन, तो पर्सन विल लुक ओबीस, मोटा हो जाएगा, एंड ही इज प्रोन टू सफर फ्रॉम मेनी डिजीजेस। उसको बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। He cannot be very active, lazy होगा, उसको breathlessness होगी, सांस फूलेगी। Okay, then after that there may be heart problems. उसको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी, then उसको क्या हो सकती है? हार्ट प्रॉब्लम, बिकॉज उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होगा तो देयर मे बी ब्लॉकेज। ओके, जैसे वाटर फ्लो करता है पाइप्स में, तो हमारी आर्टरीज में क्या फ्लो करता है? ब्लड। कोलेस्ट्रॉल ब्लॉक कर देता है आर्टरीज को, ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो प्रेशर कहाँ पे आ जाता है? हार्ट पे, तो इट मे कॉज द हार्ट प्रॉब्लम। सो यू शुड बी वेरी हेल्दी, टेक हेल्दी डाइट, डू एक्सरसाइज। अगर आपको खाना पसंद है, आप ज्यादा खाना खा रहे हो, तो उसको डाइजेस्ट भी करना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए।
जो कैलोरीज ज्यादा ले रहे हैं उसको बर्न करना चाहिए, समझ लगी? So we should take the carbohydrates and fats only in required quantities, not more than the requirement. Okay? Yes, ये मैं आपको अभी करवाने लगी हूँ. तो carbohydrates are of mainly तो ये हमारी बॉडी जो डाइजेस्ट करती है टू फॉर्म्स में करती है, स्टार्च एंड शुगर. कार्बोहाइड्रेट्स की दो टाइप्स हैं, स्टार्च एंड शुगर. एक थर्ड जो हम रफेज की बात कर रहे हैं, फाइबर की बात कर रहे हैं, वो भी एक तरह के कार्बोहाइड्रेट्स ही है, बट हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, तो हम उसकी बात अभी नहीं कर रहे. हम लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर. जो मीठे फल होते हैं, जहाँ मिठाई होती है, चीनी है, उसमें शुगर की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स है. स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, टॉफीज हैं, बर्फी, रसगुल्ले, जो भी आप खाते हो, they contain carbohydrates in the form of sugar. और स्टार्च की फॉर्म में हम जो ले रहे हैं, राइस, ब्रेड, चपाती, पोटैटो. क्लियर? इन सब में क्या होता है? स्टार्च. अब आप व्हीट, राइस, मेज भी लिख सकते हो और उससे बनी चीजें भी लिख सकते हो. क्लियर? ये सब क्या किसके सोर्सेज हैं? स्टार्च. सो मेन टू टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, व्हिच वन? Starch and sugar. Starch is taken from rice, bread, potato, chapati, corn, etc. Wheat से बनी हुई है ब्रेड. क्लियर? तो चपाती भी हम wheat भी लिख सकते हैं, हम चपाती भी लिख सकते हैं. एंड सभी स्वीट्स जो है, जब मीठे फल है, ग्रेप्स में हो सकती है, मैंगो में शुगर होती है, banana. Okay, so they are the rich sources of carbohydrates. Excuse me, ma'am.